Okay, so we are studying Indian judicial system. So one thing that we know is that we have a single integrated judiciary. Okay, what we have? We have a single integrated judiciary. Okay, what does this mean? It means that there is a single hierarchy. Okay, in our system, in our judicial system. तो अमेरिका में क्या होता है दैट देर इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट, देन देर इज अ स्टेट सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में फिर अलग अलग लेवल के कोर्ट्स होते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है जुडिशियल स्ट्रक्चर, और जो स्टेट का स्ट्रक्चर होता है दैट इज डिफरेंट। बट इन इंडिया व्हाट डू वी हैव ए सिंगल पिरामिडल स्ट्रक्चर। सो व्हेन आई से पिरामिडल स्ट्रक्चर इट मींस दैट एट द वेरी टॉप sits the Supreme Court, below them sits the High Court, and below them sits the lower courts. Okay, so ये चीज जो है you have to understand. And if I say that how separation of power is ensured, can you tell me how separation of power is ensured? Separation of power among the legislature, judiciary, and the executive, it is ensured how? There was a question in 2021 prelims that the separation of power is ensured via the independence of judiciary. Yes or no? When your judiciary is independent, then only separation of power is ensured. Okay, so please keep this in mind. Can you tell me how? Does the independence of judiciary ensure your separation of power? Anybody? No, 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 no. That is independence of judiciary. I am asking, see, independence of judiciary is there, but how does it ensure separation of power? That's what I'm asking. This salary charged on consolidated fund is basically to ensure the independence of judiciary. But I'm asking how independence of judiciary leads to separation of power. Okay, so when there is a judicial independence, try to understand. Whenever there is a judicial independence, this ensures impartiality. And what happens here is when impartiality is ensured, this leads to independent or fair adjudication of disputes between the different organs of government like executive, legislative, and obviously judicial. उसके साथ साथ what does this ensure? This also ensure that constitution is upheld. Is it possible for us to ensure separation of power without upholding the constitution? Without upholding constitution, will it be acceptable to ensure separation of power? The answer is no. Okay, so what happens here is that whenever the constitution is upheld, and how it is upheld, because we have an independent judiciary, which is free to interpret the constitution. And whenever the constitution is interpreted by the free judiciary or the independent judiciary, it ensures that separation of power is upheld. Okay, क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? 2021 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर किस चीज के थ्रू इंश्योर किया जाएगा। सो द आंसर विल बी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर टॉपिक। उसी साल का 2021 के प्रीलिम्स का था ये,
committed judiciary. So committed judiciary, is it a positive thing or a negative thing? It's a negative thing. वाई इट्स अ नेगेटिव थिंग? अब आप कहेंगे यार ये कमिटेड मतलब अच्छी बात है ना, ये कमिटेड है देश के बड़ाई के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, कमिटेड तो अच्छी चीज होती है, कमिटेड है, बट इट इज नॉट आस्किंग यू टू बी कमिटेड टू द कंट्री. व्हेन आई से दैट द जुडिशरी इज कमिटेड, व्हाट आई मीन इज दैट ये जो जुडिशरी है, दिस इज कमिटेड टू द रूलिंग गवर्नमेंट. ओके, सो व्हाट ये कहां से आया है, फ्रॉम वेयर दिस कंसेप्ट हैज कम? इंडियन हिस्ट्री में कोई आफ्टर जो हमारा रिपब्लिक बना है 1950 में, कोई कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ था? सो व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट इंदिरा गांधी जो हैं, आपको पता है इंदिरा गांधी, शी वाज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, almost autocratic, and she had a lot of, okay, a lot of psychophants. Who are the psychophants? जो खुशामदीद करते हैं आपकी, जो आपको कहते हैं सर आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, जैसे सपोज यू आर द बॉस, सो इफ यू आर सराउंडेड बाय साइकोफान्स, सो दीज पीपल दे विल से कि सर आप तो मतलब महामहिम हैं, यू आर द बेस्ट, एंड यू नो यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये जो है इंदिरा गांधी के लॉ मिनिस्टर थे, उनका नाम था मोहन कुमार मंगलम. ओके, सो मोहन भाई ने आंसर किया है उसी तरीके से, मोहन कुमार मंगलम जो है, ओके, मोहन कुमार मंगलम, ही वाज द लॉ मिनिस्टर. ओके, एंड मोहन कुमार मंगलम said that we need a committed judiciary, and he advocated for appointment of judges who were close to Indira Gandhi. ओके, सो ही सेड कि जितने भी जजेस अपॉइंट होंगे, ऑल ऑफ देम हैव टू बी क्लोजर टू इंदिरा गांधी, सो दैट दे विल रूल इन फेवर ऑफ इंदिरा गांधी. और फिर वहीं से जो है कमिटेड जुडिशरी का हमारे पास केस निकल के आया. आज के डेट में क्या कमिटेड जुडिशरी का कोई मतलब है? कोई एनी इंस्टेंस दैट यू आर आस्किंग, मतलब यू कैन थिंक अबाउट? सो व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट प्राइम मिनिस्टर ही वेंट टू ए गणेश चतुर्थी celebration at DY Chandrachud's residence. So he was the CJI DY Chandrachud. तो वहां पर some people said that why is the prime minister attending a private religious function, okay, in the house of DY Chandrachud, who was the CJI at that time. Okay, all obviously this whatever they said was useless, but what I'm saying is कि अभी recently ये फिर से न्यूज में था, because ये जो गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन थी, this was a private religious ceremony, and many people they said who were opponents of Narendra Modi, they said कि committed judiciary है ये. Why? Because the prime minister, you know, he is having bonhomie, he is very close personally, he is going to the personal religious functions, and that is why there is no independence of judiciary. Okay, so इसका implications क्या क्या है committed judiciary का? erosion of public trust, then ये threat है constitution के against, threat to constitution. Why? Because if the body which is tasked with interpreting the constitution, if it is itself committed to the ruling government, so do you think that it can uphold the constitution effectively? So the answer is no. So committed judiciary, समझ गए? Is it an ideal thing to have in India? Do you want a committed judiciary? So the answer is no. You do not wish a committed judiciary in India. Okay. अब हम आ जाते हैं, आपको समझ में आ गया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज अपहोल्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर. उसके साथ साथ committed judiciary, it's a bad thing. Now let us talk about the Indian judicial system. So unlike the American system, इंडिया के पास क्या है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम with the Supreme Court at its top, followed by the High Court at the state level,
and subordinate courts, which includes your district courts and then further down the line lower courts below them. और ये जो यूनिफाइड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दिस वी हैव इंटीग्रेट इनहेरिटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके, सो व्हेन वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड? When was the first Supreme Court in India established? 1773 Regulating Act के through a Supreme Court was established in Calcutta. When was the modern day Supreme Court established? When was the modern day Supreme Court established? It was established via the 1935 Act, Government of India Act. Okay, I hope this is clear. And US में क्या है? There is a dual system of courts. There is a court for interpreting the federal laws. So federal मतलब क्या होता है? जो यूनाइटेड स्टेट्स के कंट्री लेवल पे काम करता है. And then there is a Supreme Court for state laws as well. जो स्टेट लॉज, क्योंकि वहां पर क्या कमिंग टुगेदर सेटअप है, सो स्टेट्स आर वेरी पावरफुल. In United States, the states themselves are very powerful, so it makes sense. Okay, they have the right to secede in United States. The states in the United States, they are very powerful compared to the Indian states, whereas in Indian states what we see, they are not powerful. We have a unitary tilt. We are a quasi federal structure. Okay, so उस केस में जो है, उस केस में व्हाट वी सी इज कि अमेरिका में इट मेक्स सेंस टू हैव अ डुअल सिस्टम, इंडिया में नहीं करता है. सो कैन आई से दैट just by having a single integrated judiciary where the Supreme Court that is in New Delhi, it will sit at the top, we ensure that we are a quasi federal structure. We are not a true federal structure. We are not a true federal democracy. Why? Because हमारे यहाँ पर जो स्टेट्स के कोर्ट्स हैं, दे आर बिलो द सुप्रीम कोर्ट, दे आर बिलो द फेडरल कोर्ट. अमेरिका में क्या स्टेट के जो कोर्ट्स हैं वो बिलो हैं फेडरल कोर्ट्स के? नहीं है. ओके, वहां अलग सिस्टम है, वहां पर डाइवर्ज कर जाता है. स्टेट लॉज के लिए अलग सुप्रीम कोर्ट है और फेडरल लॉज के लिए अलग है. इंडिया में क्या ऐसा है? नहीं है. इंडिया में अगर आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट विच सिट्स एट द टॉप, इट हैज अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द हाई कोर्ट एंड इट्स जजमेंट एंड द लोअर कोर्ट्स एंड इट्स judgment. So by the virtue of this, we can say that India is not a true federal country. We have a unitary tilt. What we have a unitary tilt. Okay, so this is something it has to be kept in mind. India जो है, it has maintained a single system of court and a unified system of law and justice. So Supreme Court of India जो है, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, that was inaugurated on January the 28th 1950, and it succeeded the Federal Court of India, and which was established under the Government of India Act 1935. Okay, so हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, this is basically a successor of the Federal Court which was established in 1935, and the jurisdiction of the Supreme Court exceeds that of its predecessor. मतलब अब यहां ध्यान से सुनिएगा, 1935 में we had a federal court, okay, which was the equivalent of Supreme Court. But was this the highest authority possible? Was this the highest authority possible? No. So इसके ऊपर जो है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल बैठता था. इसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री क्लास, इसके ऊपर जो है ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल बैठता था. लेकिन क्या इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बैठता है? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है? द आंसर इज नो. सो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, विच केम इनटू इफेक्ट आफ्टर 1950 20th January, दैट इज हायर इन स्टेचर. व्हाई? बिकॉज द फेडरल कोर्ट which was present and which was initiated, established by the 1935 Act, it also had somebody above it. That was the British Privy Council. क्या आज के डेट में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में आप जा सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यू आर नॉट हैप्पी, कैन यू गो टू द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल? द आंसर इज नो. व्हाई? वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ.
what we are an independent country. Before that we were a colony of the Britishers. Okay, so ये जो है, this is something that you need to understand. And article 124 to 147 in part 5 of the constitution, it covers the organization, independence, jurisdiction, power and procedure of the supreme court. So यहां देखिए क्या हम कह रहे हैं, 124 to 147। अभी हमने सुबह में 148 पढ़ा था, इसके 147 के बाद 148 आता है, वो क्या था, कैग। और 124 के पहले 123 आता है, वो क्या था, 123 क्या था, दैट वाज ऑर्डिनेंस। दैट वाज व्हाट, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस और कैग के बीच में, between 124 to 147 you are going to find the constitutional provision for the supreme court, not the high court। हाई कोर्ट बाद में आता है, सुप्रीम कोर्ट का जो है आपको मिल जाएगा यहां पर। Now let us talk about the composition and appointment. So Supreme Court currently comprises 34 judges, including one Chief Justice and 33 other judges. तो क्या ये फिक्स्ड है, क्या ये फिक्स्ड नंबर है? नहीं, ये बढ़ता रहता है। ओके, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। देखिए पहले क्या था, व्हेन वी इनिशियली स्टार्टेड, तो सुप्रीम कोर्ट हैड 8 जजेस, जिसमें एक चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस वेर देयर। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया, न्यू पीपल, population started to explode, so it necessitated that we have more judges. So then the number was increased by parliament. So who has the authority to increase the number of judges? Who has the authority to increase the number of judges? It is the parliament. Okay, it is the parliament which has the authority. So ये जो है basically सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट के थ्रू बढ़ाया जाता है। सो पार्लियामेंट जो है वो बढ़ाती है, 10 कर दिया था 8 से 1956 में, देन 13 इन 1960, 17 इन 1977, 25 इन 1986, 30 इन 2008 एंड फाइनली 33 इन 2019। ओके, सो ये जो है बेसिकली 33 प्लस 1, टोटल जजेस कितने हो जाते हैं, टोटल जजेस जो है आपके चीफ जस्टिस प्लस 33 जजेस। ओके, सो ये बढ़ते जाएगा जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगी केसेस की, वर्कलोड बढ़ेगा। सो देन द पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द नंबर्स। ओके, देन व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ओके, फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस, एनी आइडिया? सो ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, दिस हैज इवॉल्व्ड। ओके, दिस हैज इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। ऑलराइट, तो पहले क्या था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस इज मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and high courts as deemed necessary. For other judges, the president must consult with the CJI and potentially other Supreme Court and High Court judges. अब यहां पर what is the thing that you need to keep in mind? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है इसमें, देखिए जहां पे मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जिसपे पूरा केसेस बैठा था, द वर्ड इज कंसल्ट। अब ये कंसल्टेशन जो है, डज दिस मीन मैंडेटरी कॉन्करेंस, और डज दिस मीन कि सिर्फ कंसल्टेशन विच इज रिकमेंडेटरी इन नेचर, विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड? ओके, सो यहां पर जो है अगर हम देखेंगे आर्टिकल 124 clause 2, so this will empower the president to appoint supreme court judges after consulting। तो ये जो कंसल्टेशन है, डज दिस इक्वल कॉन्करेंस, यही चीज हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या कि ये बार बार हमारे देश में, जो हमारे देश का लीगल हिस्ट्री है, इंडियाज लीगल हिस्ट्री, दिस वर्ड कंसल्टेशन, दिस वाज इंटरप्रेटेड इन वेरियस वेज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जजेस केसेस। तो जजेस केसेस जो है, basically there was a first judges cases. So in 1981
there was a first judge's cases, the Supreme Court, it interpreted the word consultation, which is given where? Which is given in Article 124, Clause 2. So the Supreme Court said that consultation does not mean concurrence and the president is not bound to follow the advice. इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट साहब और साहिबा 124 क्लॉज 2 के अंदर दे कैन टॉक टू द जजेस, दे कैन गेट देयर ओपिनियन, बट ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो दैट ओपिनियन। तो ये कब कहा गया था? ये 1981 में कहा गया था। सो दिस वाज द फर्स्ट जजेस केसेस। देन कम्स द सेकेंड जजेस केस। So in the second judge case, what we have is the court itself reversed its earlier stance. मतलब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, and ask questions if you have a doubt. In the first judge's case, the word consultation was interpreted as only advice, that this is advice and you are bound to reject it or accept it. It is up to the president. But in the second judge's cases, which happened 12 years later, that is in 1993, what जो बोला क्या गया कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्करेंस। व्हाट डज दिस मीन? दैट जो चीफ जस्टिस का रिकमेंडेशन है, इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ओके, सो कॉन्सल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस। इसका मतलब क्या है? जो भी नाम दिया जाएगा जजेस के लिए उस केस में, फॉर दैट केस Chief Justice का recommendation will be binding on the President, especially regarding the appointments for the Supreme Court judge. And CJI, however, is required to consult two of his senior most colleague. अब बहुत ध्यान से देखना, कॉन्करेंस का मतलब होता है मानना ही पड़ेगा। इफ आई से राघवेंद्र डू यू कंकर, ओके, क्या आप मेरी बात मानते हैं? तो आप बोलेंगे यस, सो वी विल से दैट हमारा जो है कॉन्करेंस हुआ है। ओके, वी हैव कॉन्कर्ड। तो कॉन्करेंस का मतलब क्या है? व्हाट डज कॉन्करेंस मीन? इट मीन्स एन अग्रीमेंट। सो कंसल्टेशन का मतलब है आपको अग्री करना होगा। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, अब यहां ध्यान से देखना, बहुत प्यार से देखना और ध्यान से देखना। जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है? CJI इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट टू ऑफ हिज हर सीनियर मोस्ट कॉलीग इन दिस मैटर। ये दिख रहा है आपको? सो ये जो है, दिस इज अ वाटरशेड इवेंट इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। वाई? बिकॉज दिस लेड टू द बर्थ ऑफ द कॉलीजियम सिस्टम। ओके, इसके बाद ही जो है हमारे पास क्या आया? कॉलीजियम सिस्टम आया। तो ये जो सेकंड जजेस केस था, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द इनिशियल वर्डिक्ट? इनिशियली इन्होंने कहा कि फर्स्ट जजेस केस में जो हमने कहा था दैट वाज रॉन्ग। कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, एंड सीजेआई का जो रिकमेंडेशन होता है प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस, दैट इज द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय दैट। और उसके साथ साथ सीजेआई को भी अगर कोई स्वीपिंग पावर ना मिल जाए, द चीफ जस्टिस इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट टू ऑफ हिज और हर सीनियर मोस्ट कॉलीग्स। एंड इन द थर्ड जजेस केस, एक और थर्ड जजेस केस था, फर्दर इलेबोरेशन हुआ ऑन द कंसल्टेशन प्रोसेस, स्टेटिंग दैट सीजेआई मस्ट कंसल्ट विथ ए कॉलीजियम ऑफ 4 senior most Supreme Court judges, and the recommendation are not binding on the government if made without adhering to this consultation process. अब इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, और आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ये रहेगी कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो आर्टिकल 124
टू में क्या लिखा रहता है? आपको बस हाँ और ना बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें यह लिखा रहता है ना कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो अपॉइंट करेंगे जजेस को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है आर्टिकल 124(2) में क्या लिखा रहता है? ये लिखा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करेंगे आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस ऑफ SC एंड HC और वट एवर इज डीम नेसेसरी। तो ये 124 क्लॉज 2 सबको समझ में आया क्या? इसमें कोई डाउट है किसी को? 124 मेरे जो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में मैं जो लिख रहा हूं उसको थोड़ा सा देखिए और मुझे बताइए कि क्या ये चीज आपको समझ में आई। 124(2) समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, इसमें अब इंटरप्रिटेशन का काम है। दिस इज ए 124(2) इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, दैट्स इट। 124(2) में ये लिखा हुआ है, दिस एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टिंग विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बस इतनी चीज लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया यहां पर। अब यहां पर से किसका काम शुरू है? यहां पर से वी स्टार्ट द वर्क ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 124(2). So whatever the judges cases we are talking about, जितने भी जजेस केसेस हमने बात किया, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 124(2). यहां तक समझ में आ गया? अब मैं बता रहा हूं फर्स्ट जजेस केस। सो 124(2) जो है उसमें कहता है कि प्रेसिडेंट जो है ही विल कंसल्ट आफ्टर कंसल्टिंग। तो फर्स्ट जजेस केस विच वॉज देयर इन 1981, उस केस में क्या कहा गया था? दैट कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। मतलब कंसल्टेशन हो सकता है, बट वट एवर द नेम्स द सुप्रीम कोर्ट विल गिव, द चीफ जस्टिस विल गिव, द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। यहां तक समझ में आ गया फर्स्ट जजेस केसेस? किसी को डाउट है? फिर आया सेकेंड जजेस केस। ये 1993 विच वॉज 12 ईयर्स आफ्टर, 12 साल के बाद आया। और इसमें क्या बोला गया कि फर्स्ट जजेस केस इज ओवरटर्न्ड, या अब उसको माना नहीं जाएगा। इन द सेकेंड जजेस केस इट वॉज सेड कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट विद द CJI, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विल बी इक्वल टू कॉन्करेंस। मतलब जो भी नाम दिया जाएगा, वट एवर नेम that will be given to the president will have to accept it। अब यहां पर CJI बहुत पावरफुल ना हो जाए, एंड द CJI इज नॉट यूनिलैटरली डिसाइडिंग द नेम्स, उसके लिए CJI के पावर को चेक करने के लिए एक कॉलीजियम सिस्टम लाया गया। एंड इन दिस कॉलीजियम सिस्टम, टू इंश्योर दैट the chief justice does not get too powerful, what we have is a collegium of two senior most judges who will consult, okay, who will consult with the CJI। और उसके बाद कंसल्टेशन के बाद ही जो है CJI नाम देंगे और प्रेसिडेंट साहब को वो एक्सेप्ट करना होगा। So second judge's case, it said consultation is concurrence, and it also led to the birth of the collegium system। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? जस्ट लेट मी नो वेदर यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है। मैंने तीन चीजें आपको बताई। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर 124(2), देन आई टोल्ड अबाउट द फर्स्ट जजेस केसेस, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट द सेकेंड जजेस केसेस। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ओके okay? अब मैं अज्यूम कर रहा हूं क्लियर है। कॉलीजियम मतलब CJI प्लस
वट एवर द मेंबर्स आर देयर, उनके साथ मिलके एक कॉलिजियम बनता है जिसमें सीजेआई और आज के डेट में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहते हैं बाय सीनियोरिटी। ओके। और ये जो है, दे मेक एक कॉलिजियम सिस्टम, एक तरीके से कमिटी हो गया, ग्रुप है, ग्रुप, हाँ हाँ, आप ऐसे कह सकते हो, ग्रुप आप कह सकते हो, ठीक है। अब मैं आता हूं थर्ड जजेस केस में। और थर्ड जजेस केस कब था? 1998। यहां पर बोला गया कि सेकंड जजेस केस का जो कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस है, दैट इज अपहेल्ड। मतलब कॉन्करेंस स्टिल मींस कंसल्टेशन, स्टिल मींस कॉन्करेंस, लेकिन कॉलिजियम सिस्टम को थोड़ा और रिफाइन किया गया, सेइंग दैट नाउ इट विल बी मेड अप ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस द चीफ जस्टिस। और यह भी कहा गया कि अगर चीफ जस्टिस कॉलिजियम के रिकमेंडेशन को नहीं मानते या कॉलिजियम को बाईपास करके किसी का नाम देते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, देन द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। तो यहां पर क्या हुआ, 3 कॉलिजियम, जो 3 जजेस केस है, 3 जजेस केस के साथ हमने प्रेसिडेंट, या अगर प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नमेंट का जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव का पावर है इन सेलेक्टिंग द जजेस, उस पे रोक लगाई बाय गिविंग द पावर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस टू द कोर्ट इटसेल्फ। और उसके साथ साथ बाय द कॉलिजियम सिस्टम वी आर ऑल्सो सीइंग दैट सीजेआई कैन नॉट यूनिलैटरली डिसाइड ऑन नेम्स अनलेस एंड अनटिल 4 जजेस के साथ इन्होंने बैठ के बात किया होगा। ओके। और यहां पर जो है सीजेआई का पावर कब हुआ और प्रेसिडेंट का भी पावर कब हुआ, ताकि एक प्रॉपर वे से हमारे पास नेम्स आए। क्या अब समझ में आया आपको? अब समझ में आया? इसमें किसी को किसी भी तरीके का डाउट है? अब यहां पर देखिए कि सीजेआई कैसे सेलेक्ट होता है, हु इज द सीजेआई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी हमने बात कर ली है, जितने भी मैंने आपको जजेस केस बताया था, दिस इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। बट व्हाट अबाउट सीजेआई? हाउ इज ही सेलेक्टेड और हाउ इज शी सेलेक्टेड? अभी तक तो शी नहीं हुआ है, बट हाउ इज ही सेलेक्टेड? तो द सीजेआई इज द सीनियर मोस्ट मेंबर, ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ओके। तो यहां पर जो है क्या किया जाता है कि एक कन्वेंशन था। ओके, कन्वेंशन है ये कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा, ही विल बी अपॉइंटेड एज द सीजेआई। क्या इससे ऐसा कभी हुआ है कि डेविएशन हुआ है इससे, किसी और को बना दिया गया है सुपरसीड करके? यस, इट हैज हैपेंड इन 1973 एंड 1977। अगेन इंदिरा गांधी जी, जो यूजुअल सस्पेक्ट, उनके केस में जस्टिस ए एन रे और जस्टिस एम एच बेग, दे वेयर अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस सुपरसीडिंग देयर सीनियर्स। वाई? बिकॉज दे वर क्लोजर टू द डिस्पेंसेशन। तो ये जो है, यहां पर जो है सीजेआई बेसिकली इज सेलेक्टेड एज द सीनियर मोस्ट जज। तो क्या मैं ये ऐसा कह सकता हूं दैट मुझे पता है कि 2028 तक कौन सीजेआई बनेगा, 2030 तक कौन सीजेआई बनेगा, और 2032 में सीजेआई कौन बनेगा? आई कैन टेल यू टुडे। हाउ? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? सीनियोरिटी मुझे पता है। सो आर वी गोइंग टू गेट आवर फर्स्ट विमेन सीजेआई एनी टाइम सून? द आंसर इज यस। हमें जो है विमेन सीजीआई मिलेंगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। ओके। हमें जो है विमेन सीजीआई मिलेंगी, बट उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। ओके। यस। सो यहां पर क्या है कि आई कैन टेल यू बिकॉज दिस कन्वेंशन इज फॉलोड,
क्या ये कन्वेंशन को आज के डेट में सुपरसीड कर सकता है गवर्नमेंट? क्या आज के डेट में नहीं कर सकता? वाई? बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर गवर्नमेंट ट्राई करेगा सुपरसीड करने का ये जो सीनियोरिटी वाला पोजीशन है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सीजेआई, तो वहां पर द सुप्रीम कोर्ट इट कैन से दैट दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके। और होता कैसे है, रिकमेंडेशन मिलता कैसे है, किसके थ्रू मिलता है? तो ये जो रिकमेंडेशन है सीजेआई प्लस कॉलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, दे गिव देयर रिकमेंडेशन टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। और यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसको फॉरवर्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी कि नहीं? प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी कि नहीं ऑफ द कॉलिजियम? यस, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द कॉलिजियम। और ये कहां पर बताया गया था, इन विच केस दैट द प्रेसिडेंट्स कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस? सेकेंड जजेस केस। बहुत बढ़िया। और जो मॉडर्न कॉलिजियम सिस्टम है वो कहां से हमें देखने को मिला था? जो मॉडर्न कॉलिजियम सिस्टम है वो कहां पर हमें देखने को मिला था? थर्ड। सेकेंड जजेस केस ये रहा ना, अभी जस्ट तो हमने पढ़ा। सेकेंड जजेस केस में कहा गया था कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। ओके। एंड सीजेआई जो है he cannot unilaterally give the names. He has to consult two of his senior most colleagues in that matter, and then this two was increased to 4 in the third judge's case. But still the president has to accept the names. He cannot dissent. Okay, क्या चीज क्लियर है यहां तक? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है? यस। ओके। अब मैं आगे चलता हूं, कॉलिजियम सिस्टम और एनजेएसी। सो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएसी क्या था बेसिकली? तो हुआ क्या था कि 2014 में दे हैड ट्राइड टू ब्रिंग द एनजेएसी, दैट वाज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। और ये जो है एनजेएसी वाज टू रिप्लेस द कॉलिजियम सिस्टम। ओके। तो एनजेएसी में था क्या? एनजेएसी में बेसिकली ये कह रहे थे कि कॉलिजियम सिस्टम इज टू बायस। व्हाई? बिकॉज देयर वाज दिस प्रॉब्लम ऑफ अंकल जज। व्हाट इज अंकल जज इशू? अंकल जज का इशू ये है कि सपोज मैं एक जज हूं, आई एम ए सुप्रीम कोर्ट जज, आई एम अ चीफ जस्टिस। तो मैं आपको, ओके, आपको जो है बना दूंगा जज, एलिवेट कर दूंगा। यू आर ऑल्सो ए एडवोकेट और अ जज, और मैं आपको एलिवेट कर रहा हूं। फिर आप क्या करोगे? फिर जो है आप मेरे बेटे को, आप, मैंने आपको बनाया, आप मेरे दोस्त हैं या आप मेरे नोन हैं, मैंने आपको बनाया, फिर मैं रिटायर हो गया। बट वेन माई सन हु इज ऑल्सो ए लॉयर, when he will come of age, then you will elevate him to the position of a judge, and then my son हु यू हैव हेल्प्ड, आपके, फिर आपके बच्चे को वो बनाएगा, और फिर उसका बच्चा मेरे पोते को बनाएगा, और फिर मेरा पोता उसके पोते को बनाएगा, और ऐसे करते 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 हम 2000, ओके, 99 में पहुंच जाएंगे, 2300, 2500, फिर भी जो है ये कॉलिजियम सिस्टम चलते रहेगा। तो यही प्रॉब्लम, ओके, दिस वाज द बिग प्रॉब्लम। अभी ये देखा आपने, एक सौरभ किरपाल करके जज जज साहब बने हैं अभी रिसेंटली, तो उनको जो है चंद्रचूड़ साहब ने बनाया। ओके, चंद्रचूड़ साहब ने उनको एलिवेट कर दिया। द फनी थिंग इज द फनी थिंग इज ये जो किरपाल साहब हैं, उनके फादर ने चंद्रचूड़ साहब का नेम रेकमेंड किया था। एंड व्हेन अभिनव चंद्रचूड़, द सन ऑफ डीवाई चंद्रचूड़, व्हेन ही विल गो ऑफ एज, जब वो एज उनका आ जाएगा, व्हेन ही विल क्रॉस 50, तो कृपाल साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अभिनव चंद्रचूड़ बिकम्स अ सुप्रीम कोर्ट जज। और फिर अभिनव चंद्रचूड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी
कि कृपाल साहब का जो बच्चा होगा, ओके, हुसोएवर, और या कोई नीस होगा, उसको वो करेंगे। तो ये चलता है दोस्त। ओके, ये दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो है अंकल जज फेनोमेना को खत्म करने के लिए हमने एनजेएसी हम लेके आए थे। हम क्या लेके आए थे? एनजेएसी गवर्नमेंट लेके आई थी 2014 में। और एनजेएसी में टोटल 6 मेंबर्स होने थे। मैं होने थे क्यों कह रहा हूं? क्या ये अभी एग्जिस्ट करता है एनजेएसी? इट हैज बीन शॉट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके। तो एनजेएसी में 6 मेंबर्स होने थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस वुड बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, देन 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ओके, of the Supreme Court after the CJI, Union Minister of Law and Justice, Union Minister of Law and Justice, and then 2 eminent person nominated by a committee. ओके। और उसमें से एक एमिनेंट पर्सन जो है एससी या एसटी या विमेन हो सकते हैं, ओके, या फ्रॉम एनी माइनॉरिटी कमिटी हो सकते हैं। और ये सारे मेंबर्स जो हैं, एक सीजेआई, 2 सीनियर मोस्ट जज, यूनियन मिनिस्टर, दे विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। और एससी एसटी वुमेन वाले जो एमिनेंट पर्सन होंगे, दीज पीपल, दे विल सर्व अ टर्म ऑफ 3 years एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन। और एनजेएसी का काम क्या था? एनजेएसी का काम था वही चीज जो कॉलेजियम करती है, ओके, रिकमेंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर अपॉइंटमेंट एज द चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड अदर हाई कोर्ट जजेस। लेकिन हुआ क्या? इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया, एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इज अंडरमाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और इसको जो है 2015 में खत्म कर दिया गया था। तो पहले, मतलब इसके बर्थ होने के तुरंत बाद इसको खत्म कर दिया गया था। क्या ये चीज आपको समझ में आया? क्या ये चीज आपको समझ में आई? ओके, यस, ऑलराइट। एससी टर्म्ड एनजेएसी एज अनकॉन्स्टिट्यूट। इसी के बाद एक बहुत फेमस लाइन आया था। इसी के बाद अरुण जेटली ने बहुत एक फेमस लाइन कहा था, कोई बता सकता है? tyranny of the unelected. We are living where? We are living inside the tyranny of unelected. Okay. तो ये जो एनजेएसी का था, अरुण जेटली ने फेमसली कहा था आफ्टर द एनजेएसी वर्डिक्ट वाज शॉट डाउन। ओके। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां पर अनइलेक्टेड इंडिविजुअल्स, हु आर द अनइलेक्टेड इंडिविजुअल्स? Who are the unelected individuals? These are the judges. They are not elected by the people. ओके, सो इनके हम टिरनी में रह रहे हैं, यही अरुण जेटली साहब ने कहा था आफ्टर द एनजेएसी वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेयर द कॉलेजियम सिस्टम वाज अपहेल्ड। ओके। सो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस अंटिल 1973 नॉर्म क्या था? इट वाज टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द सीजेआई। एंड दिस कन्वेंशन वाज ब्रोकन ट्वाइस। एक बार एएन रे को बनाया गया था, एक बार एमएच बेग को बनाया गया था। एंड इन द सेकेंड जजेस केस जो कि 1993 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो कन्वेंशन है ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज टू बी, ओके, दैट हैज टू बी सेट इन स्टोन। मतलब इसका मतलब ये है कि सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बन सकते हैं। ओके। Now, what is the qualification if you want to be appointed as a Supreme Court judge? So, to be appointed as a judge of the Supreme Court, a candidate must be a citizen of India, and the individual must satisfy one of the following professional qualification. He should have at least a 5 year experience as a judge of one or more high court. He should have been an advocate of one or more high court for at least 10 years. And then you can be a distinguished jurist in the opinion of the President of India. Okay. So ये जो है 3 केस में हम देखते हैं, आइदर you are a distinguished jurist in the opinion of President of India,
at hello, hello, you are able to hear me? Okay, just a moment. Okay, I hope the screen is visible. ठीक है, तो यहां पर हमने बात की डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, उसके साथ साथ एडवोकेसी, मतलब आप एक हाई कोर्ट में यू आर देयर फॉर एटलीस्ट 10 years, वहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग, ओके। और उसके बाद जुडिशियल एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए, 5 years। तो इट कैन बी एनी वन, ये सारे की जरूरत नहीं है आपको, इन सभी की जरूरत नहीं है, ओके। इसमें जो है बेसिकली आप या तो जुडिशियल एक्सपीरियंस हो, ओके, उसके साथ साथ आप या तो एडवोकेसी कर सकते हैं 10 years के लिए, यू शुड बी एन एडवोकेट इन ए हाई कोर्ट, लाइसेंस्ड एडवोकेट होने चाहिए, या तो यू कैन बी ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ओके, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो नहीं, बेसिकली क्या होता है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा कौन? डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो है, ये बेसिकली दिस इज फॉर लीगल स्कॉलर्स, ओके, ऑलराइट। तो उनके लिए जो है लीगल स्कॉलर्स जो है, बेसिकली इस पे कोई बैक एंड कुछ है नहीं जो मैं आपको बता सकूं। व्हाई? बिकॉज टिल डेट नो इंडिविजुअल हैज बीन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस कैटेगरी। तो बेसिकली ये लीगल स्कॉलर्स के लिए होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लियर क्राइटेरिया। तो अब आप कहेंगे क्या लक्ष्मीकांत साहब को बना सकते हैं? क्या आप लक्ष्मीकांत साहब को बना सकते हैं? तो यहां पर एक चीज है, दैट मेनी पीपल दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट यू एटलीस्ट हैव टू बी ए लॉयर, यू हैव टू एटलीस्ट हैव टू बी ए लॉयर, बट यहां पर कुछ है नहीं। यहां पर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट के लिए देर इज नो प्रीसीडेंस, बिकॉज आज तक कोई बनाया ही नहीं गया था। इसको ऐड क्यों किया गया था? दिस वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली so that it can broaden the pool of people who can be considered to be elevated to the Supreme Court and High Court. ओके, तो कुछ है ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पॉलिटी के लेक्चर मोदी जी को बहुत अच्छे लग गए, ओके, नहीं उसमें सीजेआई को बहुत अच्छा लग गया, तो क्या मुझे बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जज? कि नहीं यार, ये इस बंदे ने ना 10th शेड्यूल बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो दिस इज नॉट द केस। लेकिन यहां पर कुछ सेट नहीं है, देर इज नो सेट मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ हु कैन बी देयर, यू जस्ट हैव टू बी ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था इसके ऊपर, दे सेड दिस इज शुड बी फॉर लीगल स्कॉलर्स एंड academicians। बट ये भी बहुत लोग का ओपिनियन है, दिस डज नॉट मीन एनी रैंडम पर्सन, दिस हैज टू बी ए licensed advocate और एटलीस्ट ए पर्सन होल्डिंग ए लॉ डिग्री। क्या ये चीज क्लियर है? अभी मैं आपको कुछ आंसर नहीं कर सकता हूं, व्हाई? बिकॉज दिस लैक्स प्रीसिडेंस, क्योंकि आज तक किसी को, किसी भी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को नहीं डाला गया है, ओके। एंड प्लीज रिमेंबर देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, बट देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड एज टू रिटायर, ओके। एक प्रिस्क्राइब्ड एज है जहां पर आप रिटायर हो सकते हैं, लेकिन कोई मिनिमम एज नहीं है। मतलब अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलेक्टेड एट द एज ऑफ 30 टू द सुप्रीम कोर्ट, जो जनरली डजेंट हैपन, द पर्सन हैज टू बी इन द 50s, ओके। सो 30 जो है, 30 साल की उम्र में अगर आप जाते हैं, तो फ्रॉम देयर यू कैन सर्व अ गुड 35 years। कैग कर सकता है क्या? सपोज अ कैग इज अपॉइंटेड एट द एज ऑफ 30, सो एट what age he will retire? 65? 65? द आंसर इज नो, ही विल रिटायर एट द एज ऑफ 36, क्योंकि 6/65, याद आया? आइदर 6 years और 65, विच एवर इज अर्ली। यहां पर क्या है कि आप बेसिकली, ओके, यू कैन कंटिन्यू टिल द टाइम यू कम ऑफ रिटायरमेंट एज, ओके।
क्या ये चीज क्लियर है? ओके। तो इसमें क्या होता है कि जनरली, इन जनरल, इन 99% केसेस 50+ एज में आप जो है एलिवेट होते हैं, जनरली व्हेन यू आर इन योर लेट 50s, वेन एवर यू आर इन योर लेट 50s। तो सुप्रीम कोर्ट जज जो है, ही विल बी देयर टिल 65 एज। HC जज, हाई कोर्ट जज, टिल द एज ऑफ 62। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं, दे विल बी देयर टिल द एज ऑफ 60। कैग नहीं, रीअपॉइंट नहीं हो सकते एज गवर्नमेंट पीपल, एज अ गवर्नमेंट एंटिटी में कहीं भी नहीं हो सकते। मैंने विनोद राय का एग्जांपल दिया था, वो BCCI में गए थे, विच वॉज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कब वो भी कमिटी के मेंबर थे। ओके, ऑल राइट। इनको पेंशन भी मिलती है, इनकी पेंशन भी रहती है, मंथली पेंशन, विच इज कैलकुलेटेड ऑन योर लास्ट ड्रॉन सैलरी। उसके साथ साथ इनको आफ्टर रिटायरमेंट, जितने भी जजेस होते हैं, उनको डोमेस्टिक हेल्प, एक गाड़ी, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, ओके, ये सारी चीजें मिलती है। उसके साथ साथ राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी होती है। और दिल्ली में टाइप 7 अकोमोडेशन इनको दिया जाता है, विच इज गिवन टू सीनियर IAS ऑफिसर्स। ओके। और उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीफोन इनको दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। तो अभी एक केस आया था जिसमें दिखा रहे थे कि एक जज के पास 17 हाउस कीपिंग स्टाफ थे, एंड उन सभी का जो सैलरी था वो सुप्रीम कोर्ट भर रही थी। ओके, और सुप्रीम कोर्ट मतलब कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से टैक्स पेयर ही हुआ ना, दैट द टैक्स पेयर वॉज फुटिंग द बिल ऑफ ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हु हैड 17 हाउस होल्ड स्टाफ। ओके, सो ये सारी चीज इनको रहती है, एंड देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज, प्लीज रिमेंबर, फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। ओके। ओथ और अफर्मेशन, तो सुप्रीम कोर्ट जज का जो ओथ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, दिलवाते हैं। और ट्रू फेथ, दे टेक द ओथ ऑफ ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दे विल अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी, and they will uphold the constitution and law, and as well as they will perform the duties of the office impartially and with integrity to the best of their ability. Salaries और allowances जो है इनका, it is determined by parliament and can be altered except to their disadvantage unless during a financial emergency। मतलब इसको जो है आप ऑल्टर करके कम नहीं कर सकते, इनकी सैलरी जो है एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के, विच इज अंडर आर्टिकल 360, उसको छोड़ के इनकी सैलरी कम नहीं हो सकती। बढ़ा जरूर सकते हैं आप, बट कम नहीं हो सकती है। ओके। और ये कौन डिसाइड करता है कितनी सैलरी रहेगी? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस जो है उसको 2.8 लाख रुपीस पर मंथ कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी है उसको 2.5 लाख कर दिया गया था। जनरली इट इज केप्ट इन टच विद द पे कमीशन। जैसे जैसे पे कमीशन चेंज होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की भी सैलरी चेंज हो जाती है। आई थिंक अब नेक्स्ट जो है इनकी सैलरी 5 लाख, 5.5 लाख रुपए कर दी जाएगी इन द नेक्स्ट 8th पे कमीशन आएगी तब। So judges, they receive sumptuary allowances, free accommodation and other facilities, and upon retirement, Chief Justice and other judges, they will be entitled to a monthly pension, which is 50% of their last drawn salary. टेन्योर ऑफ जज का क्या रहता है? 65 years। कोई फिक्स्ड ईयर्स होता है इनका कि 6 साल कर सकते, 8 साल कर सकते, 10 साल कर सकते, अपार्ट फ्रॉम 65 years नहीं। अगर मैंने वही बताया था 30 years में आप चले गए अंदर, so you can be a judge for 35 years, okay, till the time you attain the age of 65। okay, इसीलिए अभी भी इसमें भी फिर रो रहे थे। रिसेंटली एक जज जज साहब, लेडी जज ने ये कहा था कि हम जो है अमेरिका से सीखना चाहिए, वहां तो मरते टाइम तक बंदा जज होता है, एंड आवर टैलेंट कैन बी एटलीस्ट यूज टिल द एज ऑफ 70। ओके, ये 65 बहुत कम है। A judge can resign from office by submitting a written resignation to the President of India. So कोई जज रिजाइन करना चाहेगा
क्या कोई जज रिजाइन करना चाहेगा? इट इज पॉसिबल। व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज देखिए, जज की सैलरी 2,80,000 रुपए और 2.5 लाख रुपए, ठीक है। एंड इन दैट केस अगर आप देखें, एडवोकेट्स करोड़ में कमाते हैं। सो मेनी एडवोकेट, जैसे आपको लगता है क्या कपिल सिब्बल को कोई प्रॉब्लम होगी जज बनने में, या अभिषेक मनु सिंघवी को कोई प्रॉब्लम होगी जज बनने में, या चिदम्बरम को कोई प्रॉब्लम होगी जज बनने में? दे आर लीगल लुमिनरीज इंडिया में। दे आर माफियाज लाइक, जैसे लीगल माफियाज कहते हैं ना, उस टाइप के, बहुत पावरफुल। लेकिन उनकी जो अर्निंग पोटेंशियल है, इट कम्स क्रैशिंग डाउन व्हेन दे बिकम अ जज। व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट प्राइवेट प्रैक्टिस। सो बहुत सारे जो एडवोकेट्स हैं, दे ट्राई नॉट टू बिकम अ जज, बिकॉज ऐसे दे कैन अर्न इन करोर्स। ओके, आप अभिषेक मनु सिंघवी को देखेंगे तो उनका जो, अगर आप राज्यसभा का एफिडेविट देखेंगे, ही हैज फिक्स्ड डिपॉजिट इन हंड्रेड्स ऑफ करोर्स एंड ही हैज टोटल वेल्थ इन थाउजेंड्स ऑफ करोर्स। ओके, सिर्फ लोन दे रखा है 100 करोड़ का लोगों को। ही हैज गिवन लोन्स ऑफ वर्थ 100 करोड़। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मेनी एडवोकेट्स, टॉप एडवोकेट्स, दे ट्राई नॉट टू बिकम, ओके, दे आर ट्राइंग नॉट टू बिकम द जजेस। और रेजिग्नेशन जनरली नहीं होता है, इसीलिए जो है जनरली रेजिग्नेशन नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ पावरफुल पोजिशन। अ जज कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या ये रिकमेंडेशन सिर्फ यही है क्या, कि पार्लियामेंट वाले बोले कि रिकमेंड कर दिया इसको निकाल दो? नहीं, इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर। And the president can remove a judge only after receiving an address from both houses, which is supported by a special majority. कहीं और पढ़ा है क्या हमने ये सिमिलर रिमूवल प्रोसेस? सुबह कैग में पढ़ा था। सुबह जो है हमने कैग में पढ़ा था इसको। ओके, यस। So this means that majority of total membership of each house, not less than two-thirds of the members present and voting, and the grounds for removal are proven misbehavior or incapacity. So सुबह हम मैंने बताया था what is proven misbehavior। क्या ये सिर्फ बदतमीजी होती है? बदतमीजी होती है, किसी के साथ बदतमीजी कर दी, this means corruption। This means what? This means corruption, this means misusing your position, दिस मीन्स एलिगेशंस अगेंस्ट यू ऑफ सीरियस नेचर। बदतमीजी नहीं होती इसका मतलब। इनका रिमूवल का प्रोसीजर कहां दिया है? जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया है 1968, एंड दिस इज ए PYQ। इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इनका जो प्रोसीजर है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया है। इनका मोशन फॉर रिमूवल, इट इज इनिशिएटेड बाय आइदर 100 members ऑफ द लोकसभा or 50 members of the Rajya Sabha, unless and until the motion for removal has 100 members signature from Lok Sabha or 50 members from Rajya Sabha, it cannot be initiated. And then if it has the numbers 100 in Lok Sabha, 50 in Rajya Sabha, it is submitted to the speaker or chairman depending on which house it is originating. So it can originate in both houses. And tell me one thing, अगर एक MCQ आया, उसमें लिखा हुआ है that procedure of removal of judge is mentioned in the Constitution of India, will it be a correct statement? The procedure for removal of judge is mentioned in the, नहीं, कहां पर है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया हुआ है, डिटेल्ड प्रोसेस। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है? ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, आई एम नॉट आस्किंग द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। It is given proven misbehavior or incapacity is mentioned in the constitution, but the detailed procedure is mentioned in the Judges Inquiry Act 1968। एडमिशन की अगर हम बात करें, तो स्पीकर और चेयरमैन ही डिसाइड्स whether to admit the motion or not, and once it is admitted, a 3-member committee is formed which includes the Chief Justice
or a Supreme Court judge, a Chief Justice of a High Court, and a distinguished jurist. इन तीनों की इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनती है आफ्टर द स्पीकर एक्सेप्ट द मोशन विच रिक्वायर्स 100 LS मेंबर और 50 RS मेंबर्स. ओके. कमिटी की जब फाइंडिंग खत्म हो जाती है तो इफ द जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी देन द मोशन प्रोसीड्स. इफ द जज इज नॉट फाउंड गिल्टी द मोशन डज नॉट प्रोसीड्स. एंड ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट देन must pass the motion by a special majority, and following this approval the president issues an order for the judge's removal. Okay. So the term impeachment is traditionally used with the removal of the president. तो impeachment में कौन सा special majority की यूज होती है? impeachment of president या removal of president में कौन सा यूज होता है? तो impeachment मतलब होता है 2/3 of total membership. याद आया? टाइप 4 हो जाएगा. ओके, वी कैन से इट इज टाइप 4. तो 543 इंटू 2/3 जो नंबर आएगा दिस विल बी क्लोज टू 364. ओके, तो वो आपका हो जाएगा. देखिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने खुद बनाया है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो व्हेन आई से टाइप 4 आई मीन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, दैट इज 2/3 इंटू 543 इन लोकसभा and 2/3 into 245 in राज्यसभा. ओके, सो दिस इज योर इम्पीचमेंट के लिए. लेकिन रिमूवल के लिए क्या हमें यही जरूरत होता है? नहीं. रिमूवल के लिए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एंड कैग. ओके, तो प्रेसिडेंट का अलग होता है. द टर्म इंपीचमेंट इज ट्रेडिशनली यूज्ड विथ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जजेस. प्लीज रिमेंबर दिस. एंड प्लीज रिमेंबर देर इज नो सक्सेसफुल इंपीचमेंट. देर इज नो सक्सेसफुल इंपीचमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. लेकिन एक बार हम क्लोज आए थे. कब आए थे? 1991 में. हमने क्या किया था? वी रामास्वामी करके जज थे, उनका इंपीचमेंट मोशन जो है वो बहुत आगे बढ़ गया था. उनका इंपीचमेंट मोशन जो है, जिसको हम इंपीचमेंट नहीं कहते हैं, ट्रेडिशनली रिमूवल कहते हैं, उनका रिमूवल मोशन बहुत आगे बढ़ गया था. लेकिन व्हाट हैड हैपेंड? द कांग्रेस पार्टी इट एब्सटेन्ड एट द लास्ट मोमेंट डिस्पाइट द इंक्वायरी कमिटी finding him guilty of misbehavior. So what was the allegation? Allegation was financial misconduct. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बेसिकली बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया था, और बेसिकली अपने जो रेसिडेंस है उन पे बहुत सारा पैसा खर्चा किया था. यस, करेक्ट. और ये सब जो है इनको इंक्वायरी कमिटी ने गिल्टी फाइंड किया था. ओके, व्हाट आई मीन टू से इज इम्पीचमेंट जो टर्म है वो हम जनरली यूज करते हैं प्रेसिडेंट के केस में, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के केस में. एंड फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप. तो ये कितना सीट्स आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 364. अगर प्रेसिडेंट साहब को हटाना है तो लोकसभा में 364 और वट एवर इज द नंबर इन राज्यसभा, फाइनल जो टोटल मेंबरशिप का नंबर है उसका 2/3. ये क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूं कि इंपीचमेंट जो है जनरली 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप पे हम यूज करते हैं, जो कि सिर्फ एक केस में प्रेजेंट है. दैट इज इन द केस ऑफ द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द SC जज, वहां पर जो है, या HC जज या SC जज की जब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज की, तो वहां पर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की बात करते हैं. सो टेक्निकली दिस इज नॉट इम्पीचमेंट, दिस इज सिंपल रिमूवल. अब समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द जज? यस, ओके, ऑलराइट.
अब हम बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। सो एक्टिंग चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज empowered टू अपॉइंट एन एक्टिव चीफ जस्टिस जब ऑफिस ऑफ सीजेआई इज वेकेंट, CJI is temporarily absent, or the CJI is unable to perform the duties of his office, and the appointment is made from among the sitting judges of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में से ही किसी को जो है बना दिया जाता है एज द एक्टिंग सीजेआई। फिर एड हॉक जजेस का क्या कंसेप्ट है? सो देखिए, कभी कभार क्या होता है कि नंबर ऑफ जजेस कम पड़ जाते हैं, केस लोड ये सारी चीजें बहुत हो जाती हैं, एंड द नंबर ऑफ जजेस जो है इट इज नॉट सफिशियंट। सो इन दैट केस एड हॉक मतलब टेम्पररी जजेस जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो उस समय जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही विल सेलेक्ट ए हाई कोर्ट जज फॉर टेम्पररी अपॉइंटमेंट। एड हॉक का मतलब होता है टेम्पररी अपॉइंटमेंट। सो हाई कोर्ट का जज जो है ही कैन बी मेड ए टेम्पररी सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, ये कहां प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 127 of the Indian Constitution. Okay. And that High Court judge has to be qualified to become a Supreme Court judge. Okay. और उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? आपको पहले चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है। सपोज यू वांट टू मेक समबडी ए टेम्पररी सुप्रीम कोर्ट जज, यू हैव टू पिक हिम फ्रॉम द हाई कोर्ट और पिक हर फ्रॉम द हाई कोर्ट, और उसको आपको एलिवेट करना होता है टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके लिए जिस हाई कोर्ट से आप उठा रहे हैं, जिस भी हाई कोर्ट से आप उठा रहे हैं वहां के चीफ जस्टिस का, बिकॉज हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव द चीफ जस्टिस ना, CJH भी तो होता है कुछ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, सो CJH जो होता है उसका परमिशन लेके, उसको कंसल्टेशन रादर, और प्रेसिडेंट का कंसेंट लेके आप जो है उसको एडहॉक जज बना सकते हैं। और अपॉइंटेड जज जो है उसका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, जो हाई कोर्ट से जिस जिस बंदे को भी आप उठा रहे हैं, सो दैट पर्सन हैज टू हैव द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, एंड एडहॉक जज का जुरिस्डिक्शन सेम होता है, और उसके बाद जो है प्रिविलेजेस वगैरह पावर वगैरह सेम होते हैं एज अ परमानेंट सुप्रीम कोर्ट जज। और उस समय जो है, ओके, उस समय जो है आप जो एडहॉक जज बने हैं दे मस्ट प्रायोरिटाइज सुप्रीम कोर्ट ड्यूटीज ओवर देयर हाई कोर्ट ड्यूटीज। मतलब उस समय दे हैव टू बी फ्रॉम, दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, देखिए होता क्या है ना, व्हेन आई से चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट से कंसल्टेशन, अब फॉर एग्जांपल आप हेडक्वार्टर्स में काम करें, एक लेट अस से यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, आप हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं एंड यू नीड मोर पीपल, सो यू कॉल ब्रांच ऑफिस। तो ऐसे ही बुला लेंगे क्या किसी को भी? फर्स्ट यू विल कॉल द ब्रांच ऑफिस हेड एंड देन से कि यार तीन चार लड़के को भेज दो। उसी तरीके से CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही विल कॉल दी चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, और वहां से बोलेंगे यार दो जजेस को मेरे पास भेज दो बिकॉज कोरम कम पड़ रहा है एंड वी कैन, ओके, वर्कलोड बढ़ चुका है हमारा। ठीक है। रिटायर्ड जजेस का बात अगर हम करें तो उसमें क्या होता है, रिटायर्ड जजेस को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। somebody has turned the age of 65, okay, then he becomes retired from the Supreme Court, but Chief Justice of India can also request retired Supreme Court or High Court judges who are qualified for Supreme Court appointment to serve as temporary judges of the Supreme Court। Okay, so इस केस में जो है, okay, इस केस में they can, okay, they can basically come back for a limited time, and these judges they receive allowances as determined by the president, and prior consent of the president is required, but they are not considered permanent members of the Supreme Court। ये जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कहां पर होगा? द आंसर इज यस, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि दिल्ली जो है इट विल बी द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 130. आर्टिकल 130 इट मेंशंस दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर में दिल्ली जो है इट विल बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया shall have the authority to appoint another place or places as the seat of the Supreme Court after the approval of President. क्या चीफ जस्टिस कैलकाटा को डिक्लेयर कर सकते हैं, मुंबई को डिक्लेयर कर सकते हैं, बेंगलुरु को डिक्लेयर कर सकते हैं? यस ही कैन. ओके, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अभी के लिए दिल्ली है. ओके, और ये जो प्रोविजन टू चेंज द सीट फ्रॉम दिल्ली टू अदर प्लेस इट इज नॉट मैंडेटरी, implying that no court can mandate the president or the chief justice to designate any other place as the seat of the Supreme Court. So, seat of the Supreme Court, according to the Constitution, it is Delhi. Okay, it is what? It is Delhi. All right. And Supreme Court, it has the authority with the president's approval to make rules for regulating its practice and procedure. जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है अपना खुद का रूल्स बनाना, अपना खुद का प्रोसीजर बनाना, इन द वेरी सिमिलर मैनर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू मेक इट्स ओन रूल्स एंड फॉर इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर. उसके साथ साथ बेंच कॉम्पोजिशन जो है उसको हम देखते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. सो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस आता है या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है, सो केसेस और रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143. तो आर्टिकल 143 इज व्हाट काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन? आर्टिकल 143 इज कॉल्ड एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के जुरिस्डिक्शन होते हैं, उसमें से एक जुरिस्डिक्शन होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. सो आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिसाइडेड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस. जब भी प्रेसिडेंशियल एडवाइस या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बात होती है, प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट 5 जजेस विल सिट. ऑड नंबर में क्यों बैठते हैं? ऑड नंबर में क्यों बैठते हैं? देखिएगा हमेशा 5, 7, 9 ऐसे बैठेंगे ताकि एक कंसेंसस आ जाए. मेजॉरिटी में पॉसिबल है दैट इक्वल नंबर्स ऑफ जजेस कैन गो फॉर यस एंड इक्वल नंबर कैन गो फॉर नो. बट जब भी ऑड नंबर होता है 5, 7, 9, 11, 13, सो व्हाट हैपेंस इज दैट इन दैट केस देयर इज नो टाई ब्रेकर. ओके, there is no tie, so there is no need for a tie breaker. Okay, decision on all other cases can be made by a single judge or a division bench, allowing the court to efficiently manage its case load while ensuring that cases receive the necessary judicial attention. तो यहां ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में मिनिमम 5 जजेस एंड जनरली इन द ऑड नंबर सीरीज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ टाई सिचुएशन. एंड दूसरे केसेस में सिंगल जजेस और एनी जज जो है एक बेंच का भी हो सकता है, सिंगल बेंच, सिंगल जज बेंच और एनी काइंड ऑफ अदर डिवीजन बेंच कैन बी पॉसिबल. ओके, एंड जजमेंट्स आर डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट. ओके, सो इस चीज को आप समझिएगा. डिसीजंस आर मेड बाय अ मेजॉरिटी वोट. तो अगर 5 लोग हैं उसमें से 3 आर सेइंग नो एंड 2 आर सेइंग यस, तो उस केस में क्या होगा? द केस विल बी इट गो फॉर नो. ओके, द केस विल गो फॉर नो, मतलब ये केस खारिज हो जाएगा. और फिर ये जो 2 जज हैं इनको क्या कहा जाएगा? ये जो 2 जज हैं इनको क्या कहा जाएगा जो उल्टे तरफ गए हैं? 3 have said no, 2 have said dissenting opinion. Yes, dissent. 2 judges have dissented. ओके, मान लिया कि 5 है, 5 जज बेंच है, उसमें से 4 ने कहा ठीक है पास कर दो और एक ने कहा नहीं पास करना है. सो दिस वन पर्सन विल बी कॉल्ड एज डिसेंटर. ओके, डिसेंटिंग ओपिनियन. ये कहा जाएगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज ए डिसेंटिंग ओपिनियन. ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके. So, however, in case of disagreement, judges have the opinion to issue dissenting judgments or opinion,
एंड इसमें क्या होगा, ये जो डिसेंटिंग है इट इज रिकॉर्डेड, द रीजन फॉर हिज डिसेंट इज रिकॉर्डेड, और हर डिसेंट इज रिकॉर्डेड। मान लिया कि 5 जज का बेंच है, उसमें से 4 ने कुछ कहा कि ठीक है, ओके, इस केस पे हम कहते हैं कि आगे बढ़ने दिया जाए, 1 ने कहा नहीं बढ़ने दिया जाए, तो उसका रीजन जो है उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। ओके, उसके रीजन जो है उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। लार्जेस्ट बेंच कब था? लार्जेस्ट बेंच था केशव नंदा भारती केस में, 13 जजेस बेंच का। ओके, लार्जेस्ट बेंच जो है केशव नंदा भारती केस में 13 जजेस के बेंच का था। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? ओके, सो ये जो डिसेंटिंग ओपिनियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? मान लो कि 4 जजेस ने उस समय कुछ कहा, 1 जज ने कुछ और कहा, उनका जो रीजन है डिसेंट करने का, दिस कैन बी यूज्ड लेटर ऑन टू ओवरटर्न द जजमेंट। ये कह के कि उस समय मान लो 1976 में किसी ने डिसेंट कर दिया, और वो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था, तो ये जो डिसेंटिंग ओपिनियन है विच इज रिकॉर्डेड 50 साल के बाद, 30 साल के बाद, ये कह के कि टाइम्स हैव चेंज्ड, एंड उस समय जो डिसेंटर थे उनका जो बिलीफ था दैट इज मेन स्ट्रीम राइट नाउ। सो ये जो डिसेंट है, ओके, ये जो डिसेंट है, दिस इज एक्चुअली ट्रू फॉर नाउ, एंड वी आर ओवरटर्निंग द जजमेंट। ओके, वी आर ओवरटर्निंग द जजमेंट। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ दैट यू गाइज हैव? किसी भी टाइप का क्वेश्चन है? डिवीजन बेंच जो है आपका, व्हाट इज डिवीजन बेंच? ये जब 2 जजेस जो हैं ज्वाइंटली हियर करते हैं केसेस को, तब आपका डिवीजन बेंच था। यस, 13 जजेस का लार्जेस्ट है केशव नंदा भारती में, ठीक है। और डिवीजन बेंच क्या है? डिवीजन बेंच जब पैनल ऑफ 2 जजेस दे ज्वाइंटली हियर एंड डिसाइड केसेस। ओके, दिस इज फॉर बेसिकली बैलेंस्ड डेलिब्रेशन, आप ऐसे कह सकते हैं। ओके, सिंगल बेंच जो है, सिंगल बेंच का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल बेंच का मतलब 1 जज। फुल बेंच का मतलब, फुल बेंच का मतलब है 3 और मोर जजेस। और डिवीजन बेंच का मतलब क्या है? 2 जजेस। ओके, फुल बेंच मतलब 3 से ज्यादा जज, सिंगल बेंच मतलब 1 जज, और डिवीजन बेंच का मतलब क्या है? डिवीजन बेंच का मतलब 2 जजेस है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट, एनी अदर डाउट्स दैट यू गाइज हैव टिल हियर? एनी अदर डाउट्स? ओके, सो आई थिंक दिस इज, यहां तक एंड कर सकते हैं। हमारा इंडिपेंडेंस बाकी है, उसके बाद कुछ सिंगल लीव पिटिशन, एसएलपी। एक और इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल 142 है, दैट इज समथिंग दैट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। दो कैसे हुए मतलब? सिंगल बेंच मतलब 1 जज, डिवीजन बेंच मतलब 2 जज, और फुल बेंच मतलब 3 या उससे ज्यादा। ओके, नहीं, इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ना, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बाकी के नॉर्मल केसेस में तो हो सकता है। ऑड नंबर कहाँ होता है? जनरली हम लोग जनरली मेंटेन कहाँ करते हैं? ओके, ऑल राइट, जनरली हम मेंटेन कहाँ करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल केस में होता है। क्या ये चीज क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको एकदम जजमेंट देना ही देना है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जजमेंट देना ही देना है, तो वहां तो 5 नंबर के लोग बैठा देते हैं या उससे ज्यादा, 7, 9, 11 जनरली ऐसे बैठाते। क्यों? ताकि इजी हो जाए, बार बार डिले ना हो। ओके, इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होता है, चलिए वो भी कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होता है? सो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आपको पता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट को हमने यही कह दिया है दैट कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, पढ़ा है ना हमने, जजेस केसेस। और ये
जो प्रोसेस है ये क्या करता है, लिमिट करता है एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन एंड इट प्रिवेंट्स पॉलिटिकल कंसिडरेशन फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। उसके साथ साथ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, जजेस एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड on specific grounds and that too via a tedious process. Okay. Then fixed service condition, उनकी सैलरी आप कम नहीं कर सकते except during Article 360 financial emergency, and this provision maintains consistency of judges service। इन पे कोई प्रेशर नहीं होता कि इनकी सैलरी कम हो जाएगी। इनकी जो सैलरीज है दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। द मोमेंट आई से it is charged on the consolidated fund, it means that it is immune to the voting of the parliament. It can only be discussed, it cannot be voted upon, so it is non-votable। That is also how we ensure freedom for the judges, financial freedom। Then conduct of judges, it cannot be discussed। The constitution prohibits any discussion in parliament or state legislature regarding the conduct of Supreme Court judges in the discharge of their duties। So this protects the judges from legislative scrutiny। क्या ये उल्टा भी होता है? दोनों तरफ से काम करता है। द जजेस कैन नॉट डिस्कस वट एवर हैज हैपेंड इनसाइड पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट discuss whatever has happened with the judges, okay, whatever they are doing inside the court। Then there is a ban on practice after retirement। So retired Supreme Court judges, they are prohibited from pleading or acting in any court or before any authority within India। So Supreme Court judges जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एक बार रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो कंटिन्यू रहते हैं रिटायरमेंट में। तो अब समझ में आ रहा है कि डज इट मेक सेंस फॉर देम टू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज आफ्टर रिटायरमेंट? बिकॉज एक तरीके से आप उनका अर्निंग पोटेंशियल खत्म कर रहे हैं बाय बैनिंग देम, ओके, बाय बैनिंग प्रैक्टिस ऑन देम आफ्टर रिटायरमेंट। ऑल राइट। देन पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, जैसे हमने पढ़ा था पावर टू पनिश दैट इट इज देयर विद द पार्लियामेंट एज वेल, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास भी पावर है, इट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, सो चीफ जस्टिस हैज द ऑटोनॉमी टू अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड प्रिस्क्राइब देयर सर्विस कंडीशन। एंड इनका जो जुरिस्डिक्शन है इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, इट कैन बी एक्सटेंडेड। जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उसको कर्टेल नहीं कर सकते, एक्सपैंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन ओनली एक्सपैंड द जुरिस्डिक्शन, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द कोर्ट्स वेरियस जुरिस्डिक्शन, इंश्योरिंग इट्स रोल एज ए की पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? तो इसके थ्रू जो है इंडिपेंडेंस इंश्योर होता है। ऑल राइट, आई थिंक जुरिस्डिक्शन इसको जो है वी विल नॉट टेक इट टुडे बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टफ टॉपिक, ओके, तो उसमें समय लगेगा।